اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی آدمی، اگر کوئی مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنا آئیڈیل مان لیتا ہے، اگر اپنا رول ماڈل مان لیتا ہے، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ مان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں کیونکہ ہم نے اسی نبی کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ مانیں گے، وہی لوگ اپنے لیے رول ماڈل مانیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھیں گے اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھیں گے، وہی لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائیں گے۔ نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری کی ساری گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کتنے ایسے انسان گزرے ہیں، کتنے ایسے انسان اور کتنے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کی ہے اور اس دنیا کے اندر سلطنتیں بھی چلائی ہے، اس دنیا کے اندر حکمرانی بھی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی شان و شوکت ایک انسان کو دیا تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصولوں کو مان کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو داہنے ہاتھ میں بھی دنیا عطا کیا تھا، بائیں ہاتھ میں بھی دنیا عطا کیا تھا۔ ایک انسان اگر دائیں طرف دیکھتا تو اسے ساری کی ساری سلطنتیں اپنی نظر آتی، بائیں طرف دیکھتا تو بائیں طرف کی ساری سلطنتیں اسی نظر آتی، اور وہ انسان اسلام کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے رکھا کرتے تھے۔ دنیا کی سلطنتیں چلا رہا ہے، دنیا کی حکمرانی کر رہی ہے، لیکن اسلام کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے رکھا کرتے تھے۔ جب اسلام کا تاج اور یہ سر کا تاج لڑھکنے کی کوشش کرتا تو فوراً دنیا کو اپنے ہاتھوں سے کھسکا دیا کرتے تھے اور اس سر کے تاج کو روکا کرتے تھے، یعنی دین اسلام کو بچایا کرتے تھے، اور ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے اسلام کو نکلنے نہیں دیا کرتے تھے۔ آج 1000 2000 روپیے کے لیے ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، 2 وقت کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، اور نہ جانے اتنے ایسے انسان ہیں جو جمعے تک کی نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ اسی لالچ میں، دولت کی لالچ میں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہے، یعنی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسوہ حسنہ۔ لگاتار 2 جمعے سے جن ٹاپک کے اوپر گفتگو ہوئی ہے ان ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا خطبہ جمعہ اسی ٹاپک پر ہونا لازمی اور ضروری تھا، اس لیے میں نے آج اسی موضوع کو چنا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسوہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی اسوہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے اسوہ حسنہ، اور دوسری قسم جو ہے وہ اسوہ سیئہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی نیک انسان کی پیروی کرنا، کسی نیک انسان کو
اپنے لیے رول ماڈل ماننا، کسی نیک آدمی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ ماننا، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اور اسوہ سیئہ یہ ہے کہ کسی گنہگار، کسی بدکار اور کسی ایسے انسان کو آئیڈیل ماننا جس کا تعلق نہ تو قرآن اور نہ تو احادیث سے ہے اور نہ ہی وہ مومنوں میں سے ہے، اسی کو اسوہ سیئہ کہا جاتا ہے۔ یعنی برے لوگوں کی پیروی کرنا یہ اسوہ سیئہ ہے، اور نیک انسان، نیک لوگوں کی پیروی کرنا یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں سنو، اے دنیاوی زندگی میں مست و مگن رہنے والے لوگوں سنو، آج آپ نے نہ جانے کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیے، آج نہ جانے آپ نے کن کن لوگوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، ایسے ہی گمراہ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم نے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی آدمی، اگر کوئی مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنا آئیڈیل مان لیتا ہے، اگر اپنا رول ماڈل مان لیتا ہے، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ مان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ ہم نے اسی نبی کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ آج نہ جانے لوگ کن کن لوگوں کے راستے کو اپنا رہے ہیں، کن کن لوگوں کے راستے پر آج انسان گامزن ہے اور اپنے دین کو بالائے طاق رکھ کر کے نہ جانے کس طرح کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ تو جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کے بعد، اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اگر آئیڈیل مان لیتا ہے، نمونہ مان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے فرماتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی لوگ اپنا آئیڈیل مانیں گے، وہی لوگ اپنا اسوہ مانیں گے، وہی لوگ اپنے لیے نمونہ مانیں گے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے، جو لوگ آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح کر دیا، اور واضح کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک انسان، ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار تو کرتا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ لوگوں کے سامنے، جب مسلیان کے سامنے، جب مومنوں کے سامنے، جب مسلمانوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کو واضح کیا جاتا ہے، جب احادیث کے عبارتوں کو واضح کیا جاتا ہے، انسان مسجد سے باہر نکلتا ہے اور فوراً انکار کر دیتا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔
इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर वाज़े कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही लोग अपने लिए आइडियल मान सकता है, वही लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए उसवा मानेंगे, वही लोग अपने लिए रोल मॉडल मानेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखेंगे और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखेंगे। वही लोग जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाएंगे। वही लोग जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाएंगे। आज लोग क्या कहते हैं, मस्जिद के अंदर तकरीरें खत्म नहीं होती है कि उसके दिमाग के अंदर ये बातें चलने लगती है कि ये आलिम जो बता रहा है ये अपने मर्जी की बातें हैं और ये वो इंसान करता है जो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाता है, अपने नाम के पीछे अहमद लगाता है। ये ऐसे लोग हैं कि अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं, अपने नाम के पीछे अहमद लगाते हैं, अपना नाम जो है मुसलमानाना नाम रखते हैं, उसके बावजूद एक मुसलमान की ये हालत है, वो अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करता है, क़यामत का इनकार करता है, अज़ाब कब्र का इनकार करता है। इसका शुमार आज के जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों में होगा। जो लोग इस तरह का अकीदा रखते हैं उनका शुमार जो आज के जो संथाल है ना, ये उससे भी बदतर है। जो लोग इस तरह का अकीदा रखते हैं कि ये सारी की सारी बातें झूठी हैं, एक इंसान अपनी मफाद परस्ती के लिए कर रहा है, ये इंसान उस संथाल से भी बदतर है। जो लोग इस तरह का अकीदा रखते हैं कि ये सारी की सारी बातें यूं ही लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है कि जन्नत भी है जहन्नम भी है, अगर ना माने तो मर के देख ले, सारी बातें पता चल जाएगी कि क्या है नहीं है, क्या हक है क्या है झूठ है, सारी की सारी बातें पता चल जाएगा। और उस वक्त एक इंसान काफी अफसोस मलेगा और जब फरिश्ते उससे सवाल करेंगे अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, उस वक्त ये इंसान इकरार करेगा, वो फरिश्ते सवाल करेंगे क्या तुम्हारी मस्जिदों से ये ऐलान नहीं किया जा रहा था कि तुम्हारे लिए एक दिन मौत आनी है और कब्र के अंदर तुमसे सवाल किया जाएगा और तुमसे उन सारी की सारी बातों के बारे में पूछा जाएगा जो तुम इस दुनिया के अंदर करते हो। वो इंसान कहेगा कि हमारे सामने डराने वाला आया था, हमारे सामने डराने वाला आया था। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, सूरह मोमिन को उठा करके देख सकते हैं कि वो इंसान इकरार करेगा कि हाँ हमारे पास डराने वाला आया था लेकिन हमने झुठला दिया था, हमने झुठला दिया था, मस्जिद से निकला भी नहीं था कि हमने ये कह दिया कि ये सारी की सारी बातें झूठ हैं। ये बताया था कि इन चीजों से अपने आप को रोको, इन चीजों से अपने आप को बचाओ क्योंकि तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। ये सारी की सारी बातें हमारे सामने वाज़ेह भी हुई थी और हमारे सामने जिक्र भी किया गया था और बताया भी था, लेकिन हमने मस्जिद से जैसे ही अपने पांव को निकाला, किसी गली में बैठ करके, किसी चबूतरे में बैठ करके हमने इनकार कर दिया था, हमने झुठला दिया था। फरिश्ते कहेंगे कि झुठलाने का मजा देखना है, जाओ मुंह के बल, और फरिश्ते घसीटते हुए लेकर के जाएंगे और जहन्नम की दहकती और भड़कती हुई आग के हवाले कर दिया जाएगा। जहन्नम की दहकती और भड़कती हुई आग के हवाले कर दिया जाएगा। तरह के नाअहल लोग मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को झुठलाते हैं और अल्लाह की खुली आयतों का इनकार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की वाज़ेह आयतों को झुठलाते हैं और उसका इनकार करते हैं। ये आज के मुसलमानों की हालत है, जो अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं, जो अपने आप को सुन्नी मुसलमान कहते हैं, उसकी ये हालत है। नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहाना हजार है इसके पास। अगर कोई इंसान उससे सवाल कर दे कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, उस सवाल से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर देता है। एक गुनाह तो पहले से कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, जब कोई सवाल कर देता है कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो अरे ये सब तो फालतू की चीजें हैं, नमाज पढ़ने से क्या फायदा, कुछ नहीं होने वाला, ये आलिम, ये मौलाना, ये अल्लामा सारे के सारे झूठे हैं। इस तरह की बेलग़ बात करने से बचें।
क्योंकि एक इंसान अपना ईमान भी बर्बाद करता है, सामने वाले जो भोले भाले मुसलमान हैं, जो भोले भाले मोमिन हैं, उनका भी ईमान ये बेड़ा गर्क करके रख देता है समाज के अंदर, उसका भी बेड़ा गर्क करके रख देता है। वो भी इंसान सोचने लगता है कि ये सारी की सारी बातें जो कह रहा है सही है, क्योंकि वो इंसान मिसाल क्या देते हैं, यही मिसाल देते हैं कि देखो एक इंसान नमाज पढ़ता है, मिसाल क्या देता है, तर्क देखिए एक इंसान का किस तरह लोगों को बहकाते हैं, किस तरह लोगों को गुमराह करते हैं। तर्क क्या रहता है कि आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन आपके पास गरीबी है, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन देखिए मेरा कभी सर दर्द नहीं होता, हमारे पास देखिए कितनी दौलतें हैं, हमारे पास देखिए दौलतों के अंबार पड़े हैं और आप गरीब हैं, आप नमाज पढ़ते हैं। ये तर्क रहता है। वाह रे मुसलमान, ये तर्क देता है एक इंसान, ये मिसाल देता है कि आप नमाज पढ़ते हैं, आप गरीब हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, देखिए हम अमीर हैं। ये तर्क देता है। जब आप कुरान और हदीस के औराक को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे नबी गुजरे हैं, कितने ऐसे औलिया गुजरे हैं, कितने ऐसे रसूल गुजरे हैं कि जिसके पास एक वक्त की खाने की रोटी मौजूद नहीं थी, एक वक्त की खाने की रोटी मौजूद नहीं थी उसके घर पर, लेकिन फिर भी वो तहज्जुद पढ़ा करते थे, नमाजें अदा किया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र और अज़कार में अपनी वक्त को खपाया करते थे। उसके पास खाने और पीने की चीजें मौजूद नहीं होती थी, फिर भी वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। और खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी थी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी जो है तंग दस्ती में गुजार दी, अपनी पूरी जिंदगी जो है फक्र फाका में गुजार दी, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो गरीबी में गुजार दी। और गरीबी का आलम ये था कि अपने पेट में, अपने शिकम में पत्थर को बांध करके घूमा करते थे। जब भूख की शिद्दत महसूस होती थी तो पेट में पत्थर बांध लिया करते थे, पेट में पत्थर बांध करके मुआशरे में गश्त लगाया करते थे और लोगों को दीन की तरफ बुलाया करते थे। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। और जब यही आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, जब आप मुताला करेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जब ये आखिरी नबी इस दुनिया फानी से कूच करते हैं, जब इस दुनिया को छोड़ करके जाते हैं, जब मलकुल मौत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से रूह परवास हो जाती है, घर में जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए एक अंधेरे कमरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाशें मुबारक मौजूद थी और उस घर को उजाला करने के लिए तेल तक मौजूद नहीं था घर में। उस घर में उजाला करने के लिए, रोशनी करने के लिए तेल तक मौजूद नहीं था, ऑयल तक मौजूद नहीं था कि जिसको जलाया जाए और घर के अंदर रोशनी किया जाए। यह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आप कहते हैं कि आप नमाज पढ़ते हैं इसलिए गरीबी है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर और तुम्हारी रस्सी को जो है वो ढीला छोड़ दिया है। जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ आ जाएगी, सारी की सारी हैकड़ियां निकल जाएगी। जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी रस्सी को मजबूती से खींच लेगी, उस दिन तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और उस दिन समझ में आएगा कि हमने किस रब से दुश्मनी मोल ली थी और हमने किस रब को झुठलाया था। आज मस्जिदों से निकलते नहीं है, फौरन आयत करीमा का इनकार। आज मस्जिदों के अंदर रहते हुए भी लोग आयत करीमा का इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि ऐसी चीजें तो होने वाली ही नहीं है, ये झूठी बातें हैं। ये आज के मुसलमानों की ये हालत है, ये हालत है आज के मुसलमानों की। और ये मुसलमान कहते हैं कि हमारे ऊपर परेशानियां क्यों आती हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों आती हैं। तो बातें इधर निकल गई। मैंने उसवाए हसना के ऊपर मैंने जो मौजू लिया था उस मौजू को अभी तक शुरू नहीं कर पाया और बातें इधर निकल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और नमूना बनाया है, हमारे लिए आइडियल और नमूना बनाया है, रोल मॉडल बनाया है। अब इसकी दलील कहां है? अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली चीज ये वाज़ेह किया कि हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को
तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना बनाया है। दूसरी आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी, दुनिया वाले इंसानों से कह दीजिए, इन लोगों से कह दीजिए, ए लोगों, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गुनाहों को माफ कर दे, ऐ नबी, तो उन लोगों को ये आगाह कर दीजिए, फत्तबिऊनी, तो उनसे कहिए कि वो आपकी इत्तिबा करे। ऐ नबी, आप कह दीजिए उन लोगों से कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना चाहते हो या ये चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, तो फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो तुम मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सारी की सारी गुनाहों को भी माफ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को और नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को मेयार बनाया है इस चीज का कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेगा, इसलिए तुम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उसकी इत्तिबा करो। अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाता है, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। ऐ लोगों, अगर तुम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहे हो, अगर तुम आखिरी नबी की तुम पैरवी कर रहे हो, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। तो ऐ लोगों, तुम ये समझो कि तुम मेरी इत्तिबा कर रहे हो, यानी अल्लाह के रसूल की इत्तिबा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत है। अगर एक इंसान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है, इत्तिबा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इत्तिबा कर रहा है, उसकी पैरवी कर रहा है। ये सूरह निसा की आयत है। तीसरी आयत करीमा, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जब एक इंसान के पास अल्लाह और उसके रसूल की वाज़ेह बातें और अल्लाह और उसके रसूल की वाज़ेह दलीलें सामने आ जाए, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु। ऐ लोगों सुनो, जब अल्लाह तबारक व तआला की वाज़ेह आयतें और जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तुम्हारे सामने आ जाए, तब एक मोमिन के ऊपर, एक मोमिन मर्द के ऊपर और एक मोमिना औरत के ऊपर ये हराम हो जाती है कि वो इंसान अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के खिलाफ जाए। जब अल्लाह तबारक व तआला और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह आयतें और उनके जो अहकाम हैं, उनके जो उसूल हैं, जब एक इंसान के सामने वाज़ेह हो जाए और उसके बाद अगर एक मोमिन मर्द और मोमिना औरत अगर उस पर इंटरफेयर करने की कोशिश करे, अगर उसमें तगय्युर और तबद्दुल करने की कोशिश करे, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उस इंसान के लिए ये जायज नहीं है। जो अल्लाह ने कह दिया और जो रसूल ने कह दिया वही चीज मान करके चलनी है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर और इस आयत करीमा के आगे वाज़ेह कर रहा है कि जो लोग ऐसा करते हैं,
जो लोग इस तरह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की उसूल वाज़ेह हो जाने के बाद, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उसूल वाज़ेह हो जाने के बाद, फरमान वाज़ेह हो जाने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों में और अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके में अगर तगय्युर तबद्दुल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि यही लोग हैं जो गुमराहियों के रास्ते पर चल रहे हैं। अयकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। तो यही इंसान खुली हुई गुमराही के रास्ते पर है, यही इंसान खुली हुई गुमराही के रास्ते पर है। जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों को छोड़ करके दूसरे उसूलों को अपने लिए आइडियल मानता है और अपने लिए कामयाबी का रास्ता मानता है और हिदायत का रास्ता समझ करके जब एक इंसान चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, कि ये इंसान खुली हुई गुमराही के रास्ते पर चल रहा है। अगर एक इंसान इन सारी आयतों के करीमा के ऊपर अमल कर लेता है, अगर एक इंसान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर लेता है, इत्तिबा कर लेता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए आइडियल और नमूना मान लेता है, तो ये इंसान है जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाला है और यही इंसान है जिससे अल्लाह तबारक व तआला भी मोहब्बत करता है। सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल मान लिया था, अपने लिए रोल मॉडल मान लिया था, अपने लिए उसवा मान लिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके के ऊपर अमल किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को ये मुज़्दा सुना दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ऐ लोगों सुन लो जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल मानते हो, अपने लिए नमूना मानते हो, अपने लिए उसवा मानते हो, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हम उनसे राजी हैं और वो हमसे राजी है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जिन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए रोल मॉडल मान लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को ये कह दिया कि हम आपसे राजी हैं और आप हमसे राजी हैं। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह भी राजी और वो लोग भी राजी। तो ये एक इंसान के लिए खुशखबरी है जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते हैं और उसके बताए हुए उसूलों के ऊपर चलते हैं और उनके उसूलों के ऊपर अमल करते हैं। आज हम अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखें, अपने गरीबान के अंदर टटोल करके देखें कि हम और आप किस दहाने पर खड़े हैं। नमाज तो पढ़ते ही नहीं है, लेकिन दुनियावी मामले में और हजार ऐसे काम हैं जिनमें हम और आप इस्लाम के उसूलों को पसे पुष्ट डाल देते हैं। चाहे वो दौलत हासिल करने का रास्ता हो, चाहे वो दौलतों को खर्च करने का रास्ता हो, चाहे वो और चीजों से ताल्लुक रखने वाला रास्ता हो, सारी की सारी चीजों में, सारे के सारे रास्ते में कुरान और हदीस जो है वो हमसे कोसों दूर है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम अपने मर्जी से इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। बताओ हमारी क्या हालत होगी जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों को मानते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए कहा कि इन लोगों के लिए खुशखबरी है और इन लोगों के लिए बशारत है, और जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के उसूलों का इनकार करते हैं, उसका अंजाम क्या होने वाला है वो इंसान ये सोच ले और वो इंसान अपनी जहनों के अंदर ये बात बिठा ले और अच्छी तरह बिठा ले कि आज हम और आप जिस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा इसी दुनिया के अंदर वो इंसान पछताएगा कि काश हमने पहले ही इस चीज से तौबा कर लिया होता, हमने पहले ही इस चीज से तौबा कर लिया होता और उस हक के रास्ते को अपना लिया होता और उस जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर गामज़न हो गया होता, ताकि हमें आज ये दिन देखना न पड़ता और आज हमारे सामने ये परेशानियां और ये मुसीबतें ना आती। जब एक इंसान अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों के ऊपर अमल करने लगता है तो वो आदमी, वो मुसलमान
कभी ये नहीं सोचता है, कभी ये नहीं तसव्वुर करता है कि हमारे अल्लाह की इबादत करने से हमारे ऊपर क्या परेशानियां आएगी, हमारे ऊपर क्या मुसीबतें आएगी। ये वही इंसान सोचता है जिसके दिल के अंदर ईमान नहीं होती है। वो ये सोचता है कि इन सब चक्करों में अगर हमने अपने वक्त को लगा दिया तो कहीं दुनिया के अंदर अमीर बनने से न रह जाऊं, इस दुनिया के अंदर कहीं हमारी दौलतों में कमी ना आ जाए। ये सोच करके इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं, जबकि ये सारी की सारी चीजें बेकार है। इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे इंसान गुजरे हैं, कितने ऐसे इंसान और कितने ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिसने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी की है और इस दुनिया के अंदर सल्तनतें भी चलाई है, इस दुनिया के अंदर हुक्मरानी भी की है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की शानो शौकत एक इंसान को दिया था जिसने अल्लाह तबारक व तआला की उसूलों को मान करके इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान को दाहिने हाथ में भी दुनिया अता किया था, बाएं हाथ में भी दुनिया अता किया था। एक इंसान अगर दाएं तरफ देखता तो उसे सारी की सारी सल्तनतें अपनी नजर आती, बाएं तरफ देखता तो बाएं तरफ की सारी सल्तनतें उसी नजर आती। और वो इंसान इस्लाम को अपने सर का ताज बना करके रखा करते थे। दुनिया की सल्तनतें चला रहा है, दुनिया की हुक्मरानी कर रही है, लेकिन इस्लाम को अपने सर का ताज बना करके रखा करते थे। जब इस्लाम का ताज और ये सर का ताज लुढ़कने की कोशिश करता तो फौरन दुनिया को अपने हाथों से खिसका दिया करते थे और इस सर के ताज को रोका करते थे, यानी दीन इस्लाम को बचाया करते थे। और एक मुसलमान अपने हाथ से इस्लाम को निकलने नहीं दिया करते थे। आज 1000-2000 रुपये के लिए एक वक्त की नमाज को छोड़ देते हैं, 2 वक्त की नमाज को तर्क कर देते हैं। और न जाने इतने ऐसे इंसान हैं जो जुमे तक की नमाज को अदा नहीं करते हैं, और वो इसी लालच में, दौलत की लालच में। अगर अल्लाह न चाहे तो तुम्हें दौलतें भी नहीं मिल सकती, ये दुनिया भी नहीं मिल सकती, और आखिरत से हाथ धो बैठोगे। अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है कि तुम नमाज को अदा करो, हम तुम्हें रिज़्क अदा करेंगे। ऐ लोगों, नमाज को वअमुर अहलका बिस्सलात, हमने तुम्हें हुक्म दिया कि नमाज को अदा करो, हमने तुम्हें ये हुक्म दिया कि नमाज को अदा करो। वअमुर अहलका बिस्सलात, तुम नमाज को अदा करो, हम तुमसे रिज़्क नहीं मांगते, हम तुम्हें उल्टा रिज़्क अता करेंगे। कुरान की आयत है कि हम तुमसे रिज़्क नहीं मांगते, हम तुमसे दौलत नहीं मांगते, बल्कि हम तुम्हें रिज़्क अता करेंगे, हम तुम्हें दौलतें अता करेंगे। शर्त यह है कि नमाज को अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को भी दौलत दिया था, फिरौन को भी दौलत दिया था। अब एक इंसान ये ना समझ ले कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं फिर भी हमें अल्लाह दौलत दे रहा है। अल्लाह आजमा रहा है, इसको अमीरी ना समझे। अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को आजमा रहा है कि तुम दौलत के नशे में कितने आगे निकल सकते हो, देखते हैं। और वो वक्त आएगा कि ये दौलतें तुम्हारे सामने पड़ी रह जाएगी, वो वक्त भी आएगा कि ये दौलतें तुम्हारे पांव के नीचे दबी की दबी रह जाएगी। और जब अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते तुम्हारे हुलकूम से तुम्हारी रूह को खींच करके निकालेंगे, उस वक्त तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी क्या औकात है पता चलेगा, उस वक्त तुम्हारी हैसियत पता चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हम तुम्हें दौलतें अता कर रहे हैं, ये इस बात की दलील नहीं है कि हम तुमसे खुश हैं। ये दौलतें जो हम तुम्हें अता कर रहे हैं, ये आजमा रहे हैं कि तुम कितना गिर सकते हो और तुम कितना मुझसे झुठला सकते हो। झुठला लो, वक्त आएगा और तुम्हारी जो एड़ियां हैं, तुम्हारी पिंडलियां जो है उसी चारपाई के अंदर जिस वक्त रगड़ी जाएगी और जिस वक्त फरिश्ते तुम्हें आकर के दबोचेंगे, उस वक्त तुम्हारी हैसियत, उस वक्त तुम्हारी औकात और उस वक्त तुम्हारी कुव्वत मालूम होगा कि हमारी हैसियत क्या है। दौलतें कमाना है कमा लो, दौलतें हासिल करना है। कोई आलिम और कोई अल्लामा, कोई मुफ्ती और कोई नबी रसूल किसी भी इंसान को दौलत कमाने से रोका नहीं है, लेकिन दौलत के नशे में इतना चूर न हो जाना कि अल्लाह तबारक व तआला की उसूलों को अपने पांव तले रोन दो। दौलत के नशे में और दौलत के घमंड में इतना चूर न हो जाना कि अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों को पसे पुष्ट डाल दो। हमें दुनिया भी हासिल करनी है, अगर हमें दुनिया भी कमानी है, अगर हमें दुनिया के अंदर प्रॉपर्टियां भी जमा करनी है तो उसूलों के ऊपर चल करके जमा करें।
میں نے مثال دیا کہ کتنے ایسے حکمراں گزرے ہیں, کتنے ایسے ایمان اور مومن گزرے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دولتیں عطا کی, شان و شوکت عطا کی. اگر ایک طرف اپنے نظریں کر دیتا تھا تو دنیا کی ساری بادشاہ جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے. ایسے ایسے مسلمان گزرے ہیں دنیا کے اندر. آپ شان و شوکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, آپ اس دنیا کے اندر جھوٹی شان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو اپنے پاؤں تلے کچلتے ہیں. ہم سے پہلے کتنے ایسے حکمراں گزرے ہیں, مومن اور مرد مجاہد گزرے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی بھی عطا کی تھی دنیا کے اندر, اور وہ 5 وقت کی نماز بھی تھے, نماز بھی ادا کرتے تھے. ہم اور آپ اگر یہ سوچ کر کے اس دنیا کے اندر مست و مگن ہے کہ ہم دنیا کے اندر دولتیں حاصل کریں گے, اگر نماز میں وقت لگا دیا تو ہم دنیا کے اندر کہیں غریب نہ رہ جائے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ایک انسان کی ایمان کی کمی کی علامت ہے. ایک انسان کے اندر ایمان کی کمی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اس طرح کے تصورات اور اس طرح کے خیالات کو اپنے دل کے اندر لاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کے خیالات سے بچائے رکھے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی بے لغو باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے, اسلام پر رکھے, اور خاتمہ ہو تو خیر پر.